ordinal approach. Using the ordinal approach. ठीक है? अब ordinal approach क्या बोलता है? Ordinal approach says that satisfaction cannot be measured in terms of numbers. We can only provide ranks. ठीक है? Likewise, I say कि there are two fruits. One is apple and second is banana. So I can say that I like apple more than the banana. That means by consuming an apple, I am getting more satisfaction in terms of banana. But I am not providing numbers. कि I get 10 level of satisfaction by consuming apple and 7 utils by consuming the banana. So whenever we say this, or whenever we talk about the ordinal approach, we talk about the satisfaction which can be ranked. That means one is better than the other. Okay? And it is also known as the Hickson approach. Hickson approach. Fine. So, consumer equilibrium in ordinal approach says that the satisfaction can be ranked only. It can be compared between the commodity, and because this concept is given by Professor Hickson, so it is also known as Hickson's approach. Fine. And when we talk about the consumer equilibrium, so basically what is the consumer equilibrium? What is the definition of consumer equilibrium? ये बोलता है that it is the state of rest. State of rest. Fine. Where a consumer tries to maximize his satisfaction from his limited income. Are you getting the point? So every consumer is having a limited income, limited amount of money with him. So the form in which he make expenditure of his limited income and he tries to maximize his satisfaction. So that combination of goods he doesn't want to change. So that is why we say it is a state of rest. Is it clear? बेटा स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि जब एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरीके से खर्च करे कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, तो एक आइडियल कॉम्बिनेशन को वो चेंज नहीं करना चाहता है. ठीक है? और उसी को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट कि ये जो कॉम्बिनेशन बना ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है और हम इसको चेंज नहीं करेंगे. ठीक है? तो अब जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर पढ़ते हैं तो हम इसको आईसी अप्रोच भी बोलते हैं. एंड व्हाट डू यू मीन बाय आईसी? आईसी इज इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व. अब क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? बेटा अपने माइक ऑफ करो. We say that we study the IC approach or the IC curves. What is IC curve? It is an indifference curve. And basically, indifference curve is a curve that shows the combination of two goods that can provide
the same amount of satisfaction. अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसको समझो कि सपोज करो मैं बोलता हूं इधर एक्सेस पे मैं एप्पल्स ले लेता हूं, ठीक है, और इधर एक्सेस पे मैं बनानास ले लेता हूं, राइट। अब चाहे मैं ये कॉम्बिनेशन लेता हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, and similarly 10, 20, 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि सपोज करो मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ किया बेटा, ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ किया मैंने, और इसको मैंने नाम दिया पॉइंट ए। तो कॉम्बिनेशन ए पे मैं देखता हूं एप्पल्स कितने कंज्यूम कर रहा हूं बेटा मैं 40, एंड बनानास कितने कंज्यूम कर रहा हूं, बनानास 10। तो इस कॉम्बिनेशन से मेरे को जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो किसी भी और कॉम्बिनेशन को अगर ले लें, कि सपोज करो मैं ये कॉम्बिनेशन लेता हूं, आई सेड दिस इज कॉम्बिनेशन बी, और बी कॉम्बिनेशन पे क्या बनता है 20 एप्पल्स एंड 40 बनानास। So the level of satisfaction derived from the consumption of A and B remains the same, कि चाहे मैं A कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करूं या B कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करूं, जो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा वो हमेशा सेम रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर चाहे मैं इसको और आगे ले जाता हूं, मैं एक C कॉम्बिनेशन भी बना लेता हूं, और C कॉम्बिनेशन पे 10 एप्पल एंड 60 बनानास। In this case also my level of satisfaction remains the same. Are you getting my point? So अगर मैं इस कर्व पे बेटा पूरी लाइन पे कहीं भी पॉइंट मार्क करता हूं, वो हमेशा एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही देगा, चाहे मैं कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज को कंज्यूम करूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? यस और नो? वेरी गुड। और इसी कर्व को मैं बोलता हूं आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? हाँ, बेटा वो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया था। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज लोगे और उसको आप प्लॉट कर दो, जब भी वो इस कर्व के ऊपर रहेगा तब हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो हमेशा सेम रहेगा। हेलो बेटा, समझ आती है बात? और क्यों हमने कर्व पहले इसलिए बनाया क्योंकि यहां पे बहुत सारे लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन जो हैं वो हम अज्यूम कर सकते हैं, तो वो सारे कॉम्बिनेशन हमने लिखे नहीं, समझ जाओ। तो जब हम ये बात करते हैं बेटा एक आईसी की, तो ये क्या कहलाता है? आईसी कर्व और इंडिफरेंस कर्व, राइट? करेंगे। The next topic is the indifference map. Indifference map. बेटा आईसी कर्व समझ में आ गया था? क्या होता है? Apples and bananas. Fine. So इसको नाम दिया मैंने IC1, ठीक है?
तो जब मैंने एक आईसी बनाया, ये क्या कह रहा है मेरा इंडिफरेंस कर्व, और जब मैं एक से ज्यादा आईसी एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देता हूं, IC2, IC3, IC4, तो जब मैंने एक से ज्यादा आईसी कर्व एक सेम ग्राफ पे प्लॉट कर दिए तो ये मेरा कहलाता है आइसोमैप। अब एक चीज बेटे तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, अगर मैं IC1 की बात करूं तो इस पे मैं कहीं पे भी सपोज करो मैं 3 पॉइंट बना देता हूं A, B और C, यहां पे जो मेरे को लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। बट अगर मैं IC2 पे जाता हूं और यहां पे मैं पॉइंट बना देता हूं, सपोज करो SKY, ठीक है, तो जब मैं इन तीनों पॉइंट को कंपेयर करूंगा SKY, इस पे भी मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बट IC2 पे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द IC1, समझ लो। यानी कि जितने ऊपर वाली आईसी पे हम लोग जाते हैं हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो उतना ज्यादा होगा, पर एक पर्टिकुलर आईसी पे एक पर्टिकुलर लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बोलता हूं IC1 पे 100 लेवल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है, IC2 पे 200 लेवल्स का, 3 पे 300 लेवल्स का और 4 पे 400 लेवल्स का। तो IC1 पे A, B, C पे कहीं पे भी मैं रहूं मेरे को 100 लेवल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, SKY पे कहीं पे भी रहूं मेरे को हमेशा 200 लेवल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड द सेम रिमेन्स दी IC3 एंड IC4। गेट माय पॉइंट? तो बट IC मैप क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या है? जब मैं एक से ज्यादा IC कर्व्स को एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूं तो उसको मैं इंडिफरेंस मैप कहता हूं, ठीक है। इसका मतलब है बेटा कि IC1 पे मैं कहीं पे भी रहूं, मैं और एक बना देता हूं बेटा D पॉइंट, तो A, B, C, D कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज में यूज कर रहा हूं, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन और दिस कॉम्बिनेशन और दिस कॉम्बिनेशन और दिस कॉम्बिनेशन, माय लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑलवेज रिमेन्स द सेम, ठीक है। बट अगर मैं IC2 पे जाता हूं तो IC2 पे जाने के लिए मेरे को ज्यादा चीजें कंज्यूम करनी पड़ेंगी, मेरे को ज्यादा एप्पल्स कंज्यूम करने पड़ेंगे और ज्यादा बनाना भी कंज्यूम करने पड़ेंगे। इसको और क्लियरली समझने के लिए बेटा एक मिनट बताता हूं बेटा। IC1 और मैं इस पे बोलता हूं एक कॉम्बिनेशन था हमारा 50 एप्पल्स और 10 बनानास, सेकेंड 25 और थर्ड कॉम्बिनेशन बना देते हैं हम ये कि 10 और 50 कॉम्बिनेशंस A, B, C एप्पल्स और बनानास। A में कितना है बेटा? एप्पल्स 50, बनाना 10, 25 एंड 10 और 50, ये वाला, हाँ 10 एप्पल्स और 50 बनानास। तो A, B और C ये मैंने बनाया IC1 के लिए। अब अगर मैं सेम पॉइंट्स बनाता हूं IC2 की बात करूं, ठीक है, और IC2 पे अगर मैं बेटा यहां पे इसी के सामने एक और पॉइंट बना देता हूं जिसको मैं D पॉइंट या फिर बोलता हूं S पॉइंट, ठीक है। अब आप देखोगे मेरे को बनानास कितने कंज्यूम करने पड़ रहे हैं सेकंड केस के लिए?
सॉरी एप्पल्स कितने कंज्यूम करने पड़ रहे हैं 50, ठीक है, बट मेरे को बनानास कितने कंज्यूम करने पड़ेंगे 20 बेटा, 15 कर लो 20 कर लो, पर आप देखेंगे कि एप्पल्स उतने ही कंज्यूम कर रहे हैं पर बनानास की कंजम्पशन बढ़ गई है, ठीक है। अब अगर मैं एक पॉइंट यहां पे और बना लेता हूं बेटा, सपोज करो मैं यहां पे इसके सामने एक पॉइंट और बनाता हूं, ये जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है बेटा, और इसको बोल देता हूं के पॉइंट, ठीक है। तो के पॉइंट पे क्या हुआ कि मेरे को 20 एप्पल्स और 45 बनानास, 45 इससे थोड़ा सा कम है। तो अब तुम एक चीज अगर नोट करोगे बेटा कि जो टोटल बंच ऑफ कमोडिटीज हैं जो मैं दोनों को कंज्यूम कर रहा हूं वो बढ़ गया। पहले 10 बनानास करते थे, अब 20 बनाना कर रहे हैं। पहले 25 बनानास करते थे, अब 45 बनानास हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक कंज्यूमर ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम करके अपने टोटल सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एक कंज्यूमर ज्यादा कमोडिटीज इसीलिए कंज्यूम करता है क्योंकि उसका जो टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? और बेटा इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो बेटा मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस एक यही कंसेप्ट है which says that a rational consumer always prefer more of a commodity as it offers him higher level of satisfaction, ठीक है। Thus consumption increases, total utility also increases। यानी कि जैसे बेटा प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। The concept of monotonic preferences says that a consumer always tries to maximize his satisfaction by consuming more of a commodity। यानी वो जितनी ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम करेगा उसका टोटल सेटिस्फैक्शन भी उतना बढ़ता जाएगा। Properties of IC curve। Properties of indifference curves। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी से indifference curve is always convex to the origin, ठीक है। यहां पे हम बना लेते हैं बेटा जिससे कि हम इन चीजों को समझ सकें। IC1 हमने बोला इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और बेटा इसका रीजन क्या होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। And what is MRS? Marginal rate of substitution। Marginal rate of substitution, right? So बेटा कॉन्वेक्स क्या है? कॉन्वेक्स ये वाली शेप है बेटा। कॉन्केव क्या होता है? कॉन्केव ये वाली शेप है।
ठीक है, तो जो हमारा आईसी कर्व है वो हमेशा कॉन्वेक्स होगा ओरिजिन से, ठीक है, और इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो एमआरएस क्या है, कि सपोज करो तुम्हारे पास दो कमोडिटीज हैं, वन इज गोल्ड एंड सेकेंड इज व्हीट, ठीक है। आपके पास व्हीट जो है 10,000 केजीज है और गोल्ड जो है वो 1 केजी है, ठीक है। तो बेटा आप क्या चीज सेक्रीफाइस करना चाहेंगे और क्या चीज गेन करना चाहेंगे? जो चीज आपके पास कम है आप उसको गेन करना चाहेंगे। आप बोलते हैं कि मेरे को आधा किलो सोना दे दो तो मैं आपको 2000 किलो व्हीट दे दूंगा, ये इसको एक ही कर दो बेटा, कि 1 किलो और सोना दे दो तो मैं 2000 व्हीट जो है वो सेक्रीफाइस कर दूंगा, तो मेरे पास 2 kgs ऑफ गोल्ड हो जाएगा और 8000 kgs ऑफ व्हीट हो जाएगा। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि मैं बोलता हूं 1 किलो सोना और दे दो तो मेरे पास 3 किलो सोना हो जाएगा, पर इसके लिए मैं बोलता हूं मैं 3000 जो है वो सेक्रीफाइस और कर देता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत है, तो मेरे पास 5000 kgs ऑफ व्हीट बच जाएगा। तो जो आपका एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो यही समझाता है कि किसी कमोडिटी को गेन करने के लिए आप दूसरी कमोडिटी को कितना सेक्रीफाइस करते हैं, ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसको बेटा हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन and it is because of the diminishing MRS, ठीक है। Second property says indifference curve is downward sloping curve. That means when we move from left to right, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है, यानी कि जब मैं ओरिजिन से लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं तो ये मेरा देखते हैं कि नीचे की तरफ आता जाता है। एंड व्हाई इट हैपेंस सो, बिकॉज हमने अभी जब पीछे एक शेड्यूल बनाया था तो अगर मेरे को एक्स्ट्रा बनानास जो हैं, नीचे बनानास थे और ऊपर एप्पल्स थे, तो अगर मेरे को एक्स्ट्रा बनानास चाहिए तो मेरे को एप्पल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक्स्ट्रा बनानास मेरे को कंज्यूम करना है तो मेरे को एप्पल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड दिस हैपेंस बिकॉज मेरी जो लेवल ऑफ इनकम है वो लिमिटेड है, मैं सारी चीज अपनी इनकम से नहीं खरीद सकता, कुछ चीज खरीदनी है तो कुछ चीज सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, third property says higher IC higher level of satisfaction, ठीक है। तो जैसे मैंने बेटा अभी आइसो मैप बनाया था, एक IC2 IC3 IC4, IC1 पे 100 लेवल्स का सेटिस्फैक्शन, यहां पे 200 लेवल्स, 300 लेवल्स और 400 लेवल्स। तो जितना ज्यादा मैं IC के ऊपर जाता रहूंगा बेटा उतना ही मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द
monotonic preferences. Getting my point? So the third property says higher the IC, higher the level of satisfaction. The next says ICs never intersect each other. Intersect each other. अब इसको समझने के लिए बेटा एक छोटा सा यहां पे आईसी बना लेते हैं अलग से, ठीक है? हमने बोला दिस इज माय IC1 एंड दिस इज माय IC2, ठीक है? और IC1 पे हमने बोला था 100 लेवल्स का सेटिस्फैक्शन, IC2 पे 200 लेवल्स का सेटिस्फैक्शन। एंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने बोला ये पॉइंट है हमारा x, तो एट पॉइंट x IC1 शुड बी इक्वल टू IC2। बेटा इतनी बातें समझ में आती हैं कि जो भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है कर्व के ऊपर, वहां पे दोनों की वैल्यू जो है, दोनों कर्व्स की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो यहां पे IC1 और IC2 का इंटरसेक्शन को x बोला, तो x के ऊपर IC1 शुड बी इक्वल टू IC2 और द वैल्यू ऑफ IC1 कितना है 100 और IC2 की वैल्यू कितनी है 200। तो क्या 100 200 के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो बेटा ये हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। Because 100 is not equal to 200, so no two ICs can intersect each other. कोई भी दो IC किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी at any point of time. ठीक है? IC can never touch any of the axis, ठीक है? IC जो है बेटा कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। यानी कि अगर मैं इस तरीके से कोई IC बनाता हूं या इस तरीके से कोई IC बनाता हूं, तो इधर ये एक्स एक्सिस को, इधर वाई एक्सिस को टच करता है, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं होगा। एंड ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बोला था IC is the combination of two goods which provide same level of satisfaction। तो अगर मैं इसको करता हूं बेटा, यहां पे एप्पल्स कितने हो गए 0, सॉरी एप्पल्स हो गए 50 और बनाना हो गए 0, और जबकि यहां पे बेटा एप्पल बनाना कितने हो गए, बनाना हो गए 50 और एप्पल हो गए 0। तो यानी कि यहां पे सिर्फ हम एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं। जब हम IC की बात करते हैं तो IC is a combination of two commodities which provide same level of satisfaction। Getting my point? So these are the properties of IC curve. First is IC is convex to the origin and this happens due to diminishing MLS. Second thing is IC slopes downward, ठीक है? So whenever we move from left to right, IC will slope downward। The third point says higher the IC, higher the level of satisfaction। Higher the IC, higher the level of satisfaction, and it happens due to monotonic preferences। IC can never intersect each other। वो हमने अभी प्रूव करके देखा था कि दो IC कभी भी आपस में टच नहीं करेंगे, ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। And the last one is IC can never touch any of the axes, because if it touch any of the axes, then one commodity will become 0. The quantity of any commodity will become 0, and the combination of two commodities cannot be made। Fine? So these are the concept of indifference curve and the properties of indifference curve। Thank you।